Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on my YouTube channel, The World of Plant by Sabine Zahoor. We hope so that you all will be fine. Here is Miss Sabine Zahoor, plant pathologist. In our today's lecture, we are going to discuss Kingdom Plantae. Kingdom Plantae is the very important chapter of first year biology, chapter number 9. In the Kingdom Plantae, we will discuss about the plants, characteristics of the plants, and the classification of the plants and the different families of the plants. So we are starting our lecture. Before going to start our today's lecture, we are discussing the important questions, and these questions are: what are the plants? What are the characteristics of the plants? How plants can take their nutrition? How plants can classify into the divisions? What are the vascular plants? What are non-vascular plants? What are the phanerogames and what are the cryptogames? And what is the classification of the plants? So these are very important questions which we have to discuss in our today's lecture, and we'll find out the answer of these important questions inshallah in the end of the lecture. So you must have to keep watching till the end of the video from the beginning of the video. So during the lecture we will discuss the many things about the plants, characteristics of the plant. So keep watching and keep learning. Now we have to discuss the Kingdom Plantae. So first of all we have to discuss that what are the plants? Plants क्या होते हैं? So plants को discuss करने के लिए सबसे पहले we have a single word that plants are the living organisms. Now we have to discuss the Kingdom Plantae. Kingdom Plantae में हम discuss करेंगे plants के बारे में. So what are the plants? Plants are the living organisms. So all the eukaryotic multicellular chlorophyllous living organisms which have the cell wall, and the cell wall is made up of the true cellulose are included in the Kingdom Plantae. प्लांट्स क्या होते हैं? वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, मीन्स दे हैव द क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट, they have the chloroplast, right? And they can able to prepare their own food material which have the cell wall, and cell wall is made up of by the true cellulose. प्लांट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. प्लांट्स के पास सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. प्लांट्स के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से प्लांट्स अपने लिए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं. सो वी कैन से दैट प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स. They can prepare their own food material and they are not depending on other for taking their nutrition, because they can take their nutrition by their own. वो अपने आप अपना फूड मटेरियल हासिल कर लेते हैं. कैसे हासिल करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द photosynthesis. Process of photosynthesis is that process in which living organism which having the green pigment as the chlorophyll, in the presence of the sunlight, in the presence of the carbon dioxide, in the presence of the water molecule, the green plants can prepare their own food material by the process of photosynthesis. So photosynthesis is the process in which green plants अपने लिए खुद से फूड मटेरियल बनाते हैं. किन चीज़ों की मौजूदगी में? 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं. 4 रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द क्लोरोफिल विच इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सेकेंड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. थर्ड वन इज द water molecule, and fourth one is the sunlight. During the daytime plants can perform the function of the photosynthesis and prepare their own food material. So the plants are not depend on other for taking their nutrition. They can prepare their own food material. They can take their nutrition by their own. Now we have to discuss that all the eukaryotic, multicellular and the chlorophyllous living organism which have the cell wall made up of the cellulose are included in the Kingdom Plantae. Kingdom Plantae के अंदर उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिलस होते हैं. उनकी सेल वॉल
किससे मिलकर बनी होती है? बाय द हेल्प ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में रखा गया है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफिक बट फ्यू आर द पैरासाइट, जैसे कस्कुटा प्लांट, राइट? दे हैव द localized growth regions of the growth. Now we have to discuss the important characteristics of the kingdom plantae. Important characters of the plants. All the plants are multicellular and contain chlorophyll inside of chloroplast. Plants को हम क्या कहते हैं? They are the autotrophs and the producers. Trap the energy from the sunlight by the process of the photosynthesis and store its food material in the organic compound. All plants are the multicellular eukaryotic living organism that reproduce sexually. कैसे reproduce करते हैं? By the process of the sexual reproduction. Plants are heterotrophs or the consumers, get their energy directly or the indirectly from the plants. Like the pitcher plant हो गया, कस्कुटा plant हो गया, ये कौन से plants होते हैं? ये heterotrophs होते हैं, ठीक है? ये अपने food material खुद तैयार नहीं कर पाते, right? So plants also release oxygen needed by the consumers, right? हम plants को लेते हैं, so we are the consumers, and plants are producers क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? food material देते हैं. And plants are also give us the oxygen molecule and utilizing our the waste material, that is the carbon dioxide. हमारा जो waste material होता है carbon dioxide, उसको plants use कर लेते हैं. So plants are very much beneficial for us, right? For the purpose of nutrition, for the purpose of taking oxygen. So plants are very much important. इसके बहुत सारे benefits हैं. Plants से हम wood लेते हैं, plants हमें shade provide करते हैं, oxygen मिलती है, food material लेते हैं, different type का food material लेते हैं, और हमारी direct और indirect source का भी a part है. Is that clear? And plants are very diverse and may be the terrestrial or the aquatic. Plants कैसे होते हैं? They may be the aquatic or the terrestrial. If the plants are terrestrial, so they may be the xerophytes, they may be the halophytes, right? And they may be the mesophytes. If the plants are aquatic, plants are very diverse and may be terrestrial or the aquatic. If the plant are a terrestrial, so they may be the mesophytes or the xerophytes. If the plants are aquatic, so they may be halophytes and the hydrophytes, right? जीरोफाइट्स कौन से होते हैं? जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं. मीजोफाइट्स कौन से होते हैं? जो कि मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं. इसके अलावा हेलोफाइट्स कौन से होते हैं? जो कि सलाइन कंडीशन में रहते हैं, ठीक है? जबकि हमारे पास हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं. प्लांट्स वेरी इन दियर साइज फ्रॉम 1 millimeter इन वेट टू दी मोर देन 320 feet, राइट? प्लांट्स में लिव अ फ्यू वीक्स और सम ओवर द 500 years. प्लांट्स की लाइफ साइकिल फ्यू वीक्स की भी होती है और कुछ प्लांट की लाइफ साइकिल कितने ईयर्स की होती है? 5000 years की होती है. इज दैट क्लियर? किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू द 12 phyla और द डिविजन्स. मोर देन द 2,70,000 प्लांट्स स्पीशीज आइडेंटिफाइड, बट new species is still unidentified in the tropical rainforest. Is that clear? So these all are the important characteristics of the plants. हम recall करते हैं characteristics of plants. They are the living organism. Multicellular होते हैं, eukaryotic होते हैं. They are the chlorophyllous, having the chlorophyll as the pigment in the chloroplast, right? Because they can prepare their own food material. They are the photosynthetics, right? Plants can release oxygen molecule. ठीक है? प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स मे बी टेरेस्ट्रियल और मे बी एक्वेटिक हो सकते हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो यूज इन दी मेडिसिन. मेडिसिन भी प्लांट से प्रोड्यूस होती है और प्लांट हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं. प्लांट की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, इसके 12 phyla और डिविजन्स हैं. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स. नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं. एज वी सैड दैट प्लांट्स आर अबाउट 2,70,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, राइट? सो इनकी किस तरीके से इनको क्लासीफाई करेंगे, इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया? सो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑफ दी 2 categories. फर्स्ट वन इज़ दी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड अदर वन इज़ दी वेस्कुलर प्लांट्स. Now we have to discuss the classification of the kingdom plantae. Kingdom plantae are classified into the 2 main categories, 2 main divisions, right? कौन कौन से होते हैं? Cryptogams and the phanerogams.
राइट कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? क्रिप्टोगैम्स एंड द फिनेरोगैम्स. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटी. Kingdom Plantae के members, its mean plants, are classified into the two main divisions. First one is the non-vascular plants and other one is the vascular plants. Non-vascular plants are those plants which don't have the xylem and the phloem. You know what? Xylem and phloem are the vascular tissues. They help in the conduction of food material in the water. When they don't have, plants don't have the xylem and phloem, so they are called the non-vascular plants. And the other one division is the vascular plants. Vascular plants कौन से होते हैं? Those plants which having the xylem and phloem tissues. They are also called the vascular plants. Xylem and phloem are called the vascular tissues. ठीक है? So वो plant जिनके पास vascular टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, मीन xylem एंड phloem मौजूद होते हैं, उनमें वाटर और फूड मटेरियल की कंडक्शन होती है, वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड द वैस्कुलर प्लांट्स. राइट अब जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की दो कैटेगरीज हैं. दे मे बी द ब्रायोफाइट्स एंड दे मे बी द एल्गी. राइट हम इनको ये भी कह सकते हैं, ये थैलोफिटिक होते हैं. ठीक है, थैलोफाइटा के मेंबर्स होते हैं. इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, थैलोइड होती है इनकी बॉडी. ठीक है, इसमें लाइगन्स एंड फंजाई भी आ जाते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ द वेस्कुलर प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अदर वन इज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनको हम फिनेरोगैम्स कहते हैं. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं. ठीक है, सो फिनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स की बात करते हैं. सो ये कितनी तरह के होते हैं? ये अगेन टू टाइप्स होती हैं इनकी. सम प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग द सीड्स एंड सम आर नॉट प्रोड्यूसिंग द सीड्स. ठीक है, प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड प्लांट्स विद द सीड्स. क्योंकि अगर प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो वो सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सीड कहाँ पर मौजूद होता है? इनसाइड द ओवरी. इज दैट क्लियर? सो प्लांट्स विदाउट सीड्स आर कॉल्ड द टेरिडोफाइट्स एंड प्लांट्स विद द सीड्स क्या कहलाते हैं? वो स्पर्मोप्सिडा के मेंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, सो स्पर्मोप्सिडा आर क्लासिफाइड इनटू द टू मेन डिविजन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. Gymnosperms are those plants which having the ovule or the seeds, and seed and ovule are necked without ovary. ठीक है, यानी exposed ovules present होते हैं. Example क्या है? Cycas and the Pinus. And the other one category is the angiosperm. Angiospermic plant कौन से plants होते हैं? Which having the ovule and the seeds which is enclosed inside the ovary, means they having the ovary and seed is enclosed inside the ovary. ovary के अंदर seed और ovule enclosed होता है. and example क्या है इसकी example में मैंगो आता है, जीमेज आता है, और बाकी जितने भी fruits हम खाते हैं जिनका seed inside the fruit present होता है, they all are called the angiospermic plant. Is that clear? So this is the very simple classification of the kingdom plantae. kingdom plantae के members को यानी plants को हमने दो categories में divide किया. सबसे पहली category कौन सी है? vascular plants and the non vascular plants. अब vascular plants non vascular plants में हम again ये कह सकते हैं कि plants are classified into the phanerogams and the cryptogams. क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और फिनेरोगैम्स कौन से होते हैं? जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. इज दैट क्लियर? सो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो थैलोफिटिक होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और लाइकन लाइक होते हैं. और जो फिनेरोगैम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मीन्स दे हैव टू प्रोड्यूस द सीड्स. अब कुछ फ्लावर्स सीड प्रोड्यूस करेंगे, कुछ फ्लावर्स सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सो उसकी बेस पे हमने प्लांट्स की अगेन दो कैटेगरी बना दी है. प्लांट्स विदाउट द सीड्स आर कॉल्ड द टेरिडोफाइट्स, प्लांट्स विद द सीड्स आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ दिस स्पर्मोप्सिड. स्पर्मोप्सिड के मेंबर कहलाते हैं. अगेन इनकी टू कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक. सीड अगर ओवरी के अंदर प्रेजेंट है तो क्या कहलाएंगे? एंजियोस्पर्म कहलाएंगे. अगर सीड विदाउट ओवरी प्रेजेंट है तो क्या कहलाएंगे? जिम्नोस्पर्म्स कहलाएंगे. इज दैट क्लियर? विद होप आपको प्लांट की एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी. नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी इन डिटेल. Kingdom Plantae is divided into the two sub-kingdoms on the basis of presence or absence of the vascular bundles, means xylem and phloem और conducting tissues की बेस पर plants की दो categories बना दी गई हैं, vascular plants और the non-vascular plants. Is that clear? So dear students,
फर्स्ट डिवीजन जो कि सब डिवीजन कहलाती है किंगडम प्लांटी की, क्या कहलाती है, नॉन वेस्कुलर कहलाती है। और सेकंड डिवीजन क्या कहलाती है, वो कहलाती है वेस्कुलर प्लांट्स, राइट। सो हियर यू कैन सी इन द चार्ट दैट प्लांट्स विच डू नॉट हैव एंड देयर बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द प्लांट बॉडी। अगर किसी प्लांट बॉडी पर हम स्टेम, लीव्स एंड रूट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इनकी बॉडी कैसे होती है, जस्ट लाइक द थैलस, लाइक द वेट पीस ऑफ द कारपेट। सो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं थैलोफाइट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल द ब्रायोफाइट्स, फंजाई और द लाइकेंस। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, सब थैलोफाइट्स कहलाते हैं। एंड द प्लांट्स विच हैविंग द प्लांट बॉडी एंड देयर प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो दूसरी कैटेगरी प्लांट की क्या कहलाती है, प्लांट विच हैव डिफ्रेंशिएटेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक द स्टेम, रूट एंड लीव्स, राइट। सो यहाँ पर अगेन दो कैटेगरीज आ जाती हैं, वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की। विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज आर दी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। सो प्लांट की दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, जिसमें प्लांट्स की बॉडी के हम डिफरेंट पार्ट्स को यानी रूट, स्टेम और लीव्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव, वो इजीली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाली कैटेगरी प्लांट की अगेन टू में डिवाइड हो जाती है। पहली कहलाती है वेस्कुलर प्लांट्स और दूसरी कहलाती है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास कंडक्टिव टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड द ब्रायोफाइट्स। So the category of the vascular plant is again divided into the two main category. First one is the pteridophytes, do not producing the seed. वो plant जो कि seed produce करने की ability नहीं रखते, they are called the pteridophytes. Whereas the second category is the spermatophytes. What are the spermatophytes? Spermatophytes are the those plants which are able to produce the seeds. ये क्या करेंगे, ये सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। सो दे आर कॉल्ड द स्पर्मेटोफाइट्स, राइट। सो स्पर्मेटोफाइट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैटेगरीज। स्पर्मेटोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट category is that in which ovary is absent and because of the absence of the ovary seeds are necked, bare necked seeds are present. So this category is called the gymnospermic plant. Gymnospermic plant वो plant होते हैं जिनमें ovary absent होती है। ovary की absent होने की वजह से seeds हमें कैसे नजर आते हैं, they are necked, open and exposed seed हमें नजर आते हैं। Is that clear? Now the second category of the spermatophyte is the angiosperm. एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड प्रेजेंट होता है एंड सीड इज इनक्लोज इनसाइड द ओवरी बिकॉज दे हैविंग द ओवरी। जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है जबकि एंजियोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट होती है और सीड इनसाइड द ओवरी प्रेजेंट होता है। Is that clear? Now angiosperm are divided into the for the two main categories. Now the angiosperm are divided into the two main category. First one is the monocotyledonous plant and other one is the dicotyledonous plants. वो प्लांट्स जिनके पास जो सीड होता है वो वन कॉटिलिडन पर डिपेंड करता है, तो कौन से प्लांट कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड द मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। इनके पास सिर्फ एक ही सिंगल कॉटिलिडन होता है। फॉर एग्जाम्पल द मेज, फॉर एग्जाम्पल राइस, मिल्लत, राइट, बार्ले, ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, सारी मोनोकॉट की एग्जाम्पल है। इनके सीड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। Is that clear? Now the second category of the plant is the angiospermic plant is the dicot. Dicot वो plants होते हैं जिनके अंदर दो cotyledons मौजूद होते हैं। They are having the two cotyledons. Their seed is divided into the two equal parts, right? यानी two cotyledons मौजूद हैं। For example the peanuts, right? For example the gram, ठीक है, bean seeds, pea plant, pea seeds, ठीक है। तो ये सारे सीड्स कैसे होते हैं, जिनके सीड्स को इजीली हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड द डाइकोटिलिडनस प्लांट। इज दैट क्लियर? दिस इज द सिंपल classification of the plants. Now we have to discuss the classification of the plants on the basis of their vascular and the non vascular parts. ठीक है, वो plants जिनके पास vascular
टिश्यूज़ मौजूद हैं उनकी क्या कैटेगरीज हैं, और वो प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद नहीं है उनकी क्या कैटेगरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डिवीजन 1। फर्स्ट डिवीजन को डिस्कस करते हैं। डिवीजन फर्स्ट, now we have to discuss the first subdivision of the plants that is called the bryophytes। bryophytes कौन से plants होते हैं? bryophytes वो plants होते हैं जिनके अंदर vascular bundle मौजूद नहीं होते। It's mean those plants which don't have the vascular bundles, which don't have the xylem and phloem, and their body is not differentiated into the root, stem and leaves। Is that clear? So there are the three classes of the bryophytes। First one is the Hepitaceae, second one is the Musae, and third one is the Anthocerote, right? So bryophytes की कितनी classes हैं? bryophytes की 3 classes होती हैं। कौन कौन सी? Hepitaceae, Musae and Anthocerote, right? And the member of the Hepitaceae class are called liverworts। Hepitaceae के member क्या कहलाते हैं? liverworts कहलाते हैं। क्लास Musae के members are called mosses। म्यूसाई के मेंबर्स को हम मॉसेस कहते हैं। वेयर एज द मेंबर ऑफ द क्लास एंथोसेरेटी आर कॉल्ड ऑनवर्ड्स। क्या कहलाते हैं ये ऑनवर्ड्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? सो हिपिटेसी की बात करते हैं तो हिपिटेसी में लिवर्वर्ड्स होते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास है मार्केंशिया प्लांट। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड क्लास म्यूसाई। म्यूसाई में एग्जांपल है मोसेस। ठीक है, जो मोसेस होते हैं जैसे फ्यूनेरिया, सो वो म्यूसाई की एग्जांपल है, यानी मोस की एग्जांपल है। एंड द थर्ड क्लास इज द एंथोसेरोटी, और ये क्या कहलाती है? ये ऑनवर्ड्स कहलाते हैं और इसकी एग्जांपल है हमारे पास एंथोसिरोस। सो दीज आर द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हमने कैसे क्लासीफाई किया? ब्रायोफाइट्स को हमने 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया। क्लास हेपिटेसी, क्लास म्यूसाई एंड क्लास एंथोसेरेटी। इज दैट क्लियर? Now dear students, we have to discuss the subdivision Tracheophytes। पहले हमने Bryophytes को डिस्कस किया था। Now we have to discuss the Tracheophytes। Second subdivision of the kingdom plant is the Tracheophytes। Tracheophytes are the vascular plants। Tracheophytes कौन से plants होते हैं? Vascular plants होते हैं। It's mean they having the vascular tissues, means they have the xylem and the phloem cells। ठीक है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। सो ट्रैकियोफाइट्स आर दी वेस्कुलर प्लांट्स। देयर बॉडी इज इजीली डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ। ट्रैकियोफाइट्स की बॉडी को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? रूट, स्टेम एंड लीफ में इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर आर दी 5 क्लासेस ऑफ द सब डिविजन ट्रैकियोफाइट्स। फर्स्ट वन इज द साइलोप्सिडा। द मेंबर ऑफ द साइलोप्सिडा आर कॉल्ड द साइलोप्सिड्स, and example is the Psilotum। Is that clear? Now the second class is the Lycopsida। The member of the Lycopsida are called the club mosses, and the example is the Lycopodium। Is that clear? Third class of the subdivision Tracheophyte is the Sphenopsida। स्फेनोप्सिडा के मेंबर्स क्या कहलाते हैं? हॉर्स टेल्स कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास इक्विजिटम प्लांट। इज दैट क्लियर? फोर्थ क्लास इज द टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के मेंबर्स फर्न कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है? फर्न आता है, एडियंटम आता है, टेरिस प्लांट आता है। इज दैट क्लियर? नाउ द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द सब डिवीजन ट्रेकोफाइटा इज द स्पर्मोप्सिडा। स्पर्मोप्सिडा आर दोज प्लांट विच बियरिंग द सीड, विच हैविंग द सीड। ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये स्पर्मोप्सिड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। और इनके मेंबर्स में हमारे पास पहले तो 2 कैटेगरीज आती हैं प्लांट्स की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ओवरी प्रेजेंट होती है एंड सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द ओवरी। वेयर एज सेकेंड कैटेगरी ऑफ द प्लांट इज द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आर दोज प्लांट विच डू नॉट हैव ओवरी। लैकिंग ऑफ द ओवरी, सीड आर एक्सपोर्ट्स, बेयर एंड नेक्ड सीड्स आर प्रेजेंट। ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सब डिविजन ट्रेकोफाइट्स। ट्रेकोफाइट्स की हमने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं? ट्रेकोफाइट्स की 5 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट वन इज द साइलोप्सिडा। मेंबर ऑफ द साइलोप्सिडा आर कॉल्ड द साइलोप्सिड्स। एग्जाम्पल साइलोटम प्लांट। सेकेंड क्लास इज द लाइकोप्सिडा। द मेंबर ऑफ द लाइकोप्सिड्स आर कॉल्ड क्लब मोसिस। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? लाइकोपोडियम। Third class is the Sphenopsida. The member of the Sphenopsids are called
horse tails. एग्जाम्पल हमारे पास है इक्विजिटम प्लांट. फोर्थ क्लास इज द टेराप्सिडा. टेराप्सिडा के मेंबर्स क्या कहलाते हैं? फॉर्न कहलाते हैं. इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है? एडियंटम फॉर्न आती है. फिफ्थ क्लास इज द स्पर्मोप्सिडा. स्पर्मोप्सिडा के मेंबर स्पर्मोप्सिड कहलाते हैं. ये सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, राइट. इनके सीड की प्रेजेंस की वजह से इनकी दो सब डिविजन्स हैं. वो क्या कहलाती हैं? डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड डिवीजन जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें ओवरी प्रेजेंट होती है और सीड इनसाइड द ओवरी इंक्लोज होता है. जबकि सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है और सीड बेयर होता है, नेक्ट होता है और एक्सपोज हुआ होता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लांटिंग. So dear students, if you want to ask me any question about the classification of kingdom planting, so you must have to ask from me. I will definitely give you the answer of your each and every question. With hope so you all are understand about the characteristics of the plants, about the classification of the plants and systematic classification of the plant. Is that clear? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने बिगनिंग में कुछ क्वेश्चन को रेज किया था. विद होप सो कि आपको उन क्वेश्चंस का आंसर्स भी मिल गए होंगे. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स. यू मस्ट हैव टू email me. I will definitely give you the answer of your each and every question. If today's lecture is informative and beneficial for your academic growth, so please like, comment on video, subscribe my channel The World of Plant by Sabeen Zahoor, and also press the bell icon for the notification of more informative videos. Please do share my channel The World of Plants by Sabeen Zahoor. Keep watching, keep learning. I shall be back with another conceptual lecture and topic very soon. Till then, watch, like, comment and share the video with others. Thanks for watching. To all the subscribers to joining my channel The World of Plants by Sabeen Zahoor. Don't forget to like, subscribe, write in the comment box to telling what you like or what you want to like to make the video on that topic. Till then, take care. Have a wonderful day. Allah Hafiz, dear students.